There seems to be some relief for the people of Delhi, specifically commuters. After the borders were sealed since 13th of February, the Singhu and Tikri borders have been partially opened now, facilitating ease in movement to and from Delhi. One service lane at the Singhu border and one lane at the Tikri borders are being opened to allow movement of vehicles. Remember, viewers, Delhi NCR has been plagued by traffic woes for more than 2 weeks as vehicular movement has been in limbo. Additionally, the sealing of borders had hit businesses and adversely impacted access to healthcare. Meanwhile, protesters are carrying out a tractor march near the Yamuna Expressway right now. Meanwhile, my colleagues have filed several ground reports from the Singhu, Ghazipur and Chilla border. Let's take a look. The Farmers Protest 2.0 Delhi Chalo March that started on February 13 has seen major ups and downs where many barricading has been done, many borders were closed, be it the Singhu, Tikri, Shambhu or even the Ghazipur border. Yes, there were a lot of problems that people were facing because of the barricading. Many people were not being able to commute from one place to another because there were intense and heavy barricading. And where we are at is the very Singhu border. If we show you the visuals also, you can actually see and understand this entire flyover has been barricaded, heavily barricaded rather. You know, the first level of barricade consists of the RAF where they are deployed on high vigil and, they have the gear zone, and then behind them is the very concrete barricading with barbed wires, and behind that there is a metal barricading, and then comes the riot control vehicles that are on duty. But yes, there is some respite as well in terms of the road beneath the flyover. If you see the visuals, you can actually understand that earlier when we were showing you the visuals for the past, from February 13 till the past, day before yesterday, this entire road was blocked. But now there is definitely some respite to the people because this barricading has been done. And the farmers, the Delhi Chalo March has been suspended till February 29th. So yes, and as a result of that also Tikri borders, Singhu borders have been partially lifted, have been partially opened for commuters because they were facing a lot of problems. They were facing major delays because the factory goers, the office goers, the factory workers, the school students, the college students, all of them, and even the elderly women, they were all facing major delays to, reach from one place to another, the emergency service vehicle or even the ambulances. And now there is definitely some respite. If we show you the visuals also, you can actually see that this entire road that was blocked has now partially been lifted because there is suspension of the Delhi Chalo March. So yes, the people have, the authorities have rather, opened this border and for, the commuters to travel one place to another. Even though yes, it has become very congested, there is a traffic jam also pulping because since it's not entirely opened, it's partially opened. So all the vehicles are just struggling to reach the places on this time. If you see also, there has also been a cluster of cars and vans because since it's partially being opened, so yes, there is it's obvious that there will be a traffic jam, and as a result of that also congestion has palpated. But yes, definitely when people were just jumping from one fence to another, one barricade to another to reach to their designated places, now they can still swiftly move from one place to another. There also the traffics have been open for commuters to travel one place to another. So yes, definitely if we talk about the respite, yes, definitely there is some respite to the Delhiites who were facing major delays. But yes, it has still not been opened fully. So yes, there is still a question, when will these roads that have been jam-packed, when will they get closed? And even on February 29th also a major meeting is also supposed to take place to understand the course of action post that. So this is me, Brian Thomas, signing off with camera person Pawan for NewsX, Delhi. किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान नेता, आपको बता दें, जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे है वहां पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे और साथ ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर जो ट्रैफिक रूल है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसी तरीके से व्यवस्था कर रही है क्योंकि आज कई सारे ट्रैक्टर जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर
हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम है सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद सभी किसान अपने अपने घर को वापस लौट जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये कहा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास के गाँवों के किसान भी इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने वाले हैं और साथ ही जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके पुतले भी आज जगह जगह पर फूके जाएंगे, खास करके शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। और जो भी बॉर्डर दिल्ली से यूपी, हरियाणा, पंजाब को जोड़ते हैं वहाँ पर इस ट्रैक्टर मार्च का जो है असर देखा जाएगा। ज़्यादातर जो किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दूँ चिल्ला बॉर्डर पर भी इसका बहुत असर देखने को मिल सकता है। अभी गाज़ीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो रहा है ट्रैफिक पर। यहाँ देखिए मेरे इस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर पुलिस की और सीआरपीएफ के जवानों की ब्रीफिंग चल रही है। यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है कि अगर आज ट्रैक्टर मार्च होता है तो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको बता दें इस ट्रैक्टर मार्च का जो आयोजन करेंगे वो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हो रहा है और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हर हाईवे का जो एक साइड है, जो एक सिरा है वहां पर ट्रैक्टर चलेंगे और दूसरा जो हाईवे का सिरा है वो हम आम जनता के लिए खोल के रखेंगे ताकि आम जनता को आने जाने में परेशानी ना हो। क्योंकि इस ट्रैक्टर मार्च का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और उन्हें माने, ना कि आम जनता को परेशान करना। तो लगातार किसान नेताओं के बयान इस तरीके से आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के हालात बहुत ज़्यादा अभी गंभीर बने हुए हैं क्योंकि हर जगह पर पुलिस तैनात की गई है और जो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है आसपास की सबको अलर्ट पर जो है रख दिया है और बैरिकेडिंग के भी खासा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़। जहां एक तरफ पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे तो वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर। स्थिति आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो ट्रैफिक है स्मूथली है, मगर आप जैसे ही ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रैफिक थोड़ा जाम मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन है, जो टिकैत ग्रुप है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज हम पूरे दिन जो अपने ट्रैक्टर हैं, जो अपने ट्रॉली है, सड़कों पर उतारेंगे और कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई हुई है और चारों तरफ देखेंगे बैरिकेडिंग। और साफ तौर पे जो ट्रैक्टर मार्च है वो यमुना एक्सप्रेसवे और जो जेवर है वहाँ से होकर चिल्ला बॉर्डर तक निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन वो पहले से अलर्ट है। आपको बता दें कि नोएडा ट्रैफिक विभाग ने साफ तौर पर कहा कि देखिए अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी पर्सनल कार है उसको स्किप करके आप मेट्रो की एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लगातार हम जो देख रहे हैं जब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। किसान आंदोलन के 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों में किसान जो हैं पंजाब बॉर्डर पे टिके हुए हैं। इसके बाद जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था तो पाबंद है ही। इसके बाद 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कुछ ऐसी बात नहीं हो बन पाई है जिससे कि किसान आंदोलन खत्म होता दिखाई दे। इस बीच में जो भारतीय किसान यूनियन है वो अपना एक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसान जो धरना दे रहे हैं उनके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किसानों की तैयारी है किस तरीके से जो सैकड़ों जो ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, ट्रॉलियां हैं, वो सभी जो हैं यहाँ पर चल करके आने वाली है और ये जो है फलेदा कट तक जाएंगी और लगभग 4 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करते हुए जो दिल्ली से सटे गाँव हैं वहाँ पर जा करके वो लोगों को ये दिखाएंगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। किसानों की बात जो है, किसान के बात दिल्ली में बैठे जो नेता हैं वहाँ तक पहुँचाई जा सके, इस वजह से ये तैयारी जो है की जा रही है। कोशिश है कि किसी तरीके से किसान अपनी मांगों को पूरा करवा पाएँ। कई बैठकें हो चुकी हैं, बैठकें होने के बाद भी कोई दिक्कत जो है अभी तो पूरी नहीं हो पाई। मैं आपको ट्रैक्टर पर से दिखाता हूँ क्या स्थिति है। अब ये देखेंगे कि कितने जो लोग हैं, सैकड़ों के तादाद में किसान जो है यहाँ पर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। किसी तरीके से चाहते हैं जो किसानों की जो बात है वो दिल्ली तक पहुँचाई जा सके। दर्जनों किसान जो हैं, जो किसान बैठे हुए हैं वो ट्रैक्टर्स पे बैठे हुए हैं, ट्रॉली पे बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो किसानों की बातें हैं वो दिल्ली में बैठे लोगों तक पहुंचाई जा सके। गौतम बुद्ध नगर से कैमरामैन आकाश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक बार फिर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वजह यह है क्योंकि आज किसानों द्वारा आह्वान किया गया है कि वो आज हाईवेज पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो इसी के लिहाज से आज
गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात दिखेंगे और लगातार जो है पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं SHO यहाँ पहुँचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा जो है यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें यूपी पुलिस के जवान जो है उतरते हुए तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। ये गाजीपुर बॉर्डर का नीचे का एरिया है जो कि मुर्गा मंडी की तरफ जाता है। और वहीं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो पहले से ही सीमेंटेड दीवार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से चिन दी गई हैं, यहाँ पर खड़ी की गई हैं। वहीं कटीले तार लगे हुए हैं, ये पहले से ही लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से एक कदम दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहना है कि वो दिल्ली के अंदर एंट्री किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर 1 साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन चला था और काफ़ी हंगामा इस एरिए में देखा गया था, जिसके लिहाज से ये कदम उठाए जा रहे हैं लगातार। आज एक बार फिर किसानों द्वारा आह्वान किया गया है कि वो दिल्ली जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद के जितने भी हाईवेज़ ऐसे हैं जो दिल्ली को टच कर रहे हैं या दिल्ली में प्रवेश दे रहे हैं, उन पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई है। पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यूपी पुलिस के जवान हैं चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की जो तस्वीरें हैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ऊपर की बात की जाए तो ऊपर दिल्ली पुलिस के जवान और जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो चारों तरफ मैं आपको दिखाया मैंने किस तरीके से कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वजह यही है क्योंकि किसानों द्वारा आज आह्वान किया गया है कि वो जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं या हाईवे हैं उन पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके लिहाज से एक कदम उठाया जा रहा है। अब देखना यही होगा आखिरकार किसान और सरकार के बीच में आखिरकार ये बात कब बन पाएगी या ऐसे ही आम जनता परेशान होती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.